हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं बता दूं, मैं बढ़िया हूँ। चलिए जी, केस स्टडी नंबर 10 में आ गए। आप केस स्टडी नंबर 10 को कंप्लीट करते हैं। केस स्टडी नंबर 1 से लेकर केस स्टडी नंबर 9 तक ऑलरेडी इस यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है। इनकेस आपने अब तक नहीं देख रखा है तो प्लीज आप उसको देख लेना जाके। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि ये केस स्टडीज आपके पास इसी चैनल पे मिलने वाले हैं। चलिए, जैसे हम स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू से स्टार्ट कर रहे हैं इस केस स्टडी को भी। इज द मैक्सिमम डेप्रिसिएशन अलाउेबल, एमसीक्यू नंबर 1 में है, इज द मैक्सिमम डेप्रिसिएशन अलाउेबल अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 कैलकुलेटेड बाय द Murari correct? If not, what is the maximum allowable depreciation as per the details given in this? अच्छा, हमें depreciation compute करना है, DT से क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, what is the amount of the impairment loss which Saha Fashions Limited is required to transfer to the statement of profit and loss and how the same should be allocated? तो ये impairment loss का क्वेश्चन है, FR से क्वेश्चन आ रखा है, इंडिया 36 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, regarding the request of Mr. Baman to inspect the contract of service entered by the company with Mr. Geet, MD identify the incorrect statement of the following. ठीक है, अभी पता नहीं चल रहा, किस तरीके पढ़ने के बाद आएंगे वापस से इस पे। Considering the fact in issue 4 is appointment of hero as a director of the company valid, तो लॉ का क्वेश्चन है, appointment of director से related। ठीक है, आएंगे वापस। It's Sahana not required to comply with any provisions under Income Tax Act 1961, considering her individual tax returns are subject to the audit under the provision of Income Tax Act 1961। तो TDS के provisions पूछे गए यहाँ पे, DT का क्वेश्चन है वापस से। चलिए डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। Sahana is intrigued by the concept of the impairment and wants to understand if an asset is once impaired, can it be reversed? Explain in brief the accounting for the reversal of impairment, source of information which indicate the reversal of impairment loss। तो आप देख रहे हो दो केस स्टडी, पिछले एक और एक केस स्टडी में ऐसे ही था, आपके पास में पूछा गया था with respect to the इंडेक्स 103, दैट इज केस स्टडी नंबर 9 में था। इंडेक्स 103 का थ्योरी पूछ लिया गया था, यहाँ पे इंडेक्स 36 का थ्योरी आपको पूछ लिया गया है। केस स्टडीज से कोई रिलेवेंसी नहीं है इसका, बस 36 के जो थ्योरी है वो आपको यहाँ पे लिखने हैं, जो कंसेप्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। Sana wants to know if her company missed some invoices while claiming GST ITC. Till what time ITC can be claimed, and she believes the same may be taken till filing GST 3 return for the month of March of the concerned financial year is her view appropriate? देखिए, ये क्वेश्चन है आपके पास जीएसटी से। नेक्स्ट इज द एग्जीक्यूटिव एंड द नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैव डिफरेंट roles and responsibilities. The responsibility of independent director with reference to financial reporting and approval as a part of an audit committee requires a special mentions. Explain with examples। ठीक है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में पूछा गया है यहाँ पे। कोई नहीं, केस स्टडीज पढ़ते हैं, केस स्टडी के बाद हम आएंगे इन क्वेश्चंस में वापस से। Sahana is an MBA graduate from IIM Bangalore. Sahana and her father incorporated a company, Saha Fashions Limited, to set up a boutique and chain of ready-made garment stores to support their family business of cotton and mills. She was able to manage the accounting and the taxation part of her business by herself in the initial stages. Considering the business expansion, she was evaluating to hire a professional consultant who would support in all the business matter, including taxation and accounting. She reached out to her old friend Madan, a practicing chartered accountant, to seek his help on account and compliance matter relating to the company. ठीक है, Madan set up his own proprietorship firm and has been in practice specializing in audit and taxation since 10 years. When Sahana contacted Madan for professional help, he was more glad to support her. They met up at a coffee shop to discuss the detail of engagement. During the conversation, Madan tells her that the times have changed and so the ways of presenting accounts of any business as per the financial reporting framework. Okay? He explains how the preparation of financial statement is now regularized in such a way where all the financial statement have consistency and uniformity across the industry with few exceptions. Example for the specially regulated financial statement. Okay, in addition to the users of the financial statement would have an assurance of complying with the basic framework. He also gives her an overview of the latest changes in the income tax and GST, which could have an impact on business. After a detailed conversation on accounting and taxation aspect, he asks Sahana to brief him about her business and the issues she is facing. The meeting gets more formal as Sachin calls Murari the accounting work in a company to the meeting। तो यहाँ तक तो आपके पास बैकग्राउंड ही गिवन है। अब जो इश्यूज हैं जिसके रिलेटेड हमें एक्सप्लेनेशन यहाँ पे पूछे गए वो यहाँ पे गिवन है। इश्यू नंबर 1 देखिए आपके पास में हम अभी तक केस स्टडी जो सॉल्व कर चुके हैं, केस स्टडी 9 तक, यहाँ तक हमें समझ में आ रहा है। या तो आपको इश्यू पूछ लिए जाएंगे या पैराग्राफ के हिसाब से, या इसे इश्यू नंबर 1 इश्यू नंबर 2 करके आपको पूछ लिया जाएगा। डिफरेंट किस्म के आपके पास में केस स्टडीज यहाँ पे फॉर्मेटिंग प्रेजेंट किए गए हैं। कोई नहीं, केस स्टडी नंबर 10 पे ये देख लेते हैं इश्यू नंबर 1 को।
पढ़ते हैं आगे. Sahana opines that Murari is not computing the depreciation of the plant and machinery appropriately. ठीक है. Sahana opines that Murari is not computing the depreciation on the plant and machinery appropriately. उन्होंने ये डबल depreciations के बारे में बता दिया. एंड जो हमारे पास MCQ नंबर 1 है मे भी इसी से रिलेटेड है. चलिए देखते हैं आगे. As per Murari, working total maximum depreciation on the machinery at the rate of 15% comes to 8.7 lakhs and the computer comes to this much lakhs. ठीक है. Issue number 2. Issue number 2 क्या है? On 1st April 2022, Saha Fashions Limited acquired 100% of the Spoon Limited for 5 lakhs, which was into cotton spinning business. The fair value of the net identifiable asset of the Spoon Limited was 4.5 lakhs and goodwill was 0.5 lakhs. On 31st March 2024, the government changes policy on the textile sector, having adverse impact on the business of the companies like Spoon Limited. ठीक है. Internal discussion of the government policies indicate that revenue of Spoon Limited is estimated to fall by 20% coming 3 to 5 years. The adverse effect on the marketplace and strict regulatory conditions indicate the impairment. Yes, impairment की ये external factor है जिससे आपके पास impairment की समझ में आ रहा है कि impairment होने वाला है. As a result, Spoon Limited has to estimate the recoverable amount of the goodwill and net assets on 31st March 2024. Saha Fashions Limited using straight line depreciation. The useful life of the Spoon Limited assets is estimated to be 15 years. With no residual value. चलिए इसके पास salvage value कुछ भी नहीं है. Further, no independent cash flows can be identified to any individual assets. So the entire operations of the Spoon Limited is to be treated as a cash generating unit. Okay, CGU है ये. Due to the regulatory entangle, it's not possible to determine the selling price of the Spoon Limited as a CGU. ठीक है. Its value in use is estimated by the management at 3.2 lakhs. ठीक है. Value in use आपके पास में given है. And यहाँ बताया जा रहा है कि दो net selling prices के पास में that is not given over here. So हम इसकी इम्पेयरमेंट कैसे कंप्यूट करेंगे वो देख लेंगे. मिस्टर गीत इश्यू नंबर 3 में गिवन है. तो इश्यू नंबर 1 वाज विद रिस्पेक्ट टू आपके पास डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन. इश्यू नंबर 2 था आपके पास में रिगार्डिंग टू इम्पेयरमेंट लॉस एफआर से इश्यू नंबर 3 में देखते हैं. मिस्टर गीत वाज अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी ऑन 5 October 2023 in place of Mr. Suresh. The company decided to pay remunerations to Mr. Geet, who, as per section 197.4 of the Companies Act 2013, Mr. Baman, one of the members of the company, wanted to inspect contract of service entered into by the company with Mr. Greet by assigning him the office of managing director, but was denied to have such inspection on the ground that the contract with Mr. Greet is not in writing. ओके इंस्पेक्शंस के बारे में गिवन है. लॉ में जो रजिस्टर्स अवेलेबल होते हैं उसके इंस्पेक्शंस अलाउ किए जाते हैं. तो ये बेसिकली यहाँ पे गलत प्रोविजन है. कोई नहीं, देख लेंगे क्वेश्चंस से वापस आएंगे इस पे क्या क्वेश्चंस पूछेंगे इससे. Company at AGM held on 30 September 2021 appointed Ghana as a non-executive director on the board of the company for a period of 3 years. On 2nd October 2021, Ghana met with an accident and died on the spot. The board of directors of the company on 16th October 2021 appointed Hero to fill the casual vacancy so created. The appointment of the Hero was made for a term of 3 years of the board unconditionally. तो ये अलाउड नहीं है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैजुअल वैकेंसी फिल भी करती है. तो सेक्शन नंबर 161 के हिसाब से क्या होती है, टेन्योर जिस बंदे की कारण कैजुअल वैकेंसी हुआ है, सपोज एक्स की डेथ के कारण कैजुअल वैकेंसी हुआ है, तो एक्स की टेन्योर कितना था, द रिमेनिंग अनएक्सपायर्ड टेन्योर वुड बी द टेन्योर फॉर द पर्सन हु फिल्स द वैकेंसी. ठीक है. तो इन दिस केस जितनी उनकी रिमेनिंग टेन्योर थे वो टेन्योर ही इसका टेन्योर होगा और बाकी नहीं होगा. चलिए इश्यू नंबर 5 पे देखते हैं. Besides company related matters, Sahana asked Madan to advise how in individual tax matters too. So he is planning to buy a resident flat for non-resident, which is price is 48.5 lakhs. The person is selling the flat, Rainbow, is an I. Okay, नाम ही Rainbow है. Okay. He generalized for the prohibition of the income tax act 1961 and he will be visiting India to execute the sale. After the titles get transferred, the flat will be renovated with a total cost of rupees 60 lakhs approximately. Madan was quite astonished when he got to know the renovation cost is more than the purchase price of the flat. अगर renovation cost ही ज़्यादा है, 60 lakhs का renovation cost है, आपके पास में 48.5 lakhs purchase price है. Okay, Sahana informed Madan that she is purchasing the flat due to her father emotional attachment. Oh, emotional attachment के कारण खरीद रहे हैं. ठीक है. With the locality and evaluating to finalize the contract for the renovation work to make the interest as per her liking. Apparently, Murari informed that there would not be any compliance under the Income Tax Act towards the flat purchase and purchase renovations. ठीक है. एक स्टडी थे, आप लोग के बाद के स्टडी पढ़ लो, वापस से हम आएंगे, इसको कंप्लीट करेंगे अभी इसके एमसीक्यू वगैरह. चलिए जी सॉल्व करते हैं एमसीक्यू फटाफट से. एमसीक्यू नंबर 1. Is the maximum depreciation allowable under Income Tax Act 1961 calculated by Murari correct? If not, what is the maximum allowable depreciation as per details given in the issue number 1? चलिए इश्यू नंबर 1 पे देख लेते हैं. इश्यू नंबर 1 पे क्या बोला गया, ये है, इसके हिसाब से हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है. WDV प्लांट एंड मशीनरी
प्लांट एंड मशीनरी की क्या रहती है डेप्रिसिएशन रेट 15%, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज न्यू प्लांट एंड मशीनरी। अच्छा, न्यू प्लांट एंड मशीनरी ने परचेज किया तो हमें एडिशनल डेप्रिसिएशन का भी क्लॉज चेक करना पड़ेगा। हम एज्यूम करके चल रहे हैं एडिशनल डेप्रिसिएशन में बाकी जो कंडीशंस हैं वो सेटिस्फाइड है, ठीक है। तो न्यू प्लांट एंड मशीनरी पुट टू यूज ऑन 8 जून 2023, 180 डेज से ऊपर है तो यहाँ पे आपके पास रेट हो जाएगा 15% और एडिशनल डेप्रिसिएशन के लिए रेट होगा 20%, ठीक है। न्यू प्लांट एंड मशीनरी अगेन एंड इसमें पुट टू यूज है 15 दिसंबर 2023, मतलब 180 डेज से ये कम है। तो इन दैट सिनेरियो क्या होगा, इसमें 7.5% एंड 10% वुड बी द रेट फॉर दिस। एंड नेक्स्ट यहाँ पे आ रहा है 2 जनवरी 2024 एंड कंप्यूटर के लिए रेट कितना होता है 40% एंड कंप्यूटर एक्वायर्ड एंड इंस्टॉल्ड है 20% वुड बी द रेट फॉर दिस केस, क्योंकि हम आते हैं इसमें हाफ करके 180 डेज से कम, इस वजह से हाफ द रेट एज एप्लीकेबल वुड बी द रेट फॉर द डेप्रिसिएशन, ठीक है सर। 15% कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेशन पे देखो 15% है 30 का, आपको कैलकुलेटर भी लेके बैठना पड़ेगा आपको। 15% ऑफ 30 कितना होगा, ओके 30 इंटू 15% इट विल 4.5, ठीक है। नेक्स्ट इज 15% ऑफ 20, दिस विल बी 3, 20% ऑफ द 20 विल बी 4, ठीक है। हम नेक्स्ट है आपके पास में 7.5% 8 का, 8 इंटू 7.5% विल बी 0.6 एंड 0.6 यहाँ पे हो जाएगा 0.8, ठीक है। 20% मल्टीप्लाइड 3 6, सो हेयर ओके 3 का 20% इज 6। अब ये सम कर लेते हैं हम। 3 का 20% 6 नहीं होगा भैया, 0.6 होगा, ठीक है। 0.6 प्लस 0.6 प्लस 3 प्लस 4.5 इट्स 8.7 और इधर आ रहा है 4.8, तो टोटलिटी में आप देखोगे तो 8.7 प्लस 4.8 इज 13.5, ठीक है। 13.5 वुड बी दैट। यहाँ पे इन्होंने बोला कि ऑन कंप्यूटर एट द रेट ऑफ 40% 1.2 लाख, ये गलत है, 0.6 लाख से होगा। एंड ऑन मशीनरी फॉर द डेप्रिसिएशन 15% इन्होंने एडिशनल डेप्रिसिएशन यहाँ पे कैलकुलेट नहीं किया, तो ये आंसर इनकी जो कंटेंशन है वो कैलकुलेशंस गलत है। सही कैलकुलेशंस वुड बी 13.5 लाख रुपीज वाला आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए, ठीक है जी। देख लेते हैं इंस्टीट्यूट का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 सी वुड बी द आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे आपके पास में इम्पेयरमेंट लॉस कंप्यूट करने के लिए बोला गया है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द इम्पेयरमेंट लॉस इन व्हिच साहा फैशंस लिमिटेड इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एंड हाउ द सेम शुड बी एलोकेटेड। तो यहाँ पे क्वेश्चन था आपके पास में रिगार्डिंग टू सीजीयू, एक गुडविल थे एंड कुछ एसेट्स थे एंड गुडविल एंड एसेट्स की फेयर वैल्यू अलग से हमारे पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो 100% स्पून लिमिटेड ने 5 लाख रुपीज पे खरीदा था जिसका फेयर वैल्यू 4.5 लाख रुपीज थे एंड गुडविल 0.5 लाख रुपीज उन्होंने पेमेंट कर रखा था। 31 मार्च 2024 में कुछ इंडिकेटर की वजह से हमें जो है करना क्या, इम्पेयरमेंट कैलकुलेट करना है एंड देखो इम्पेयरमेंट लॉस हमें कैलकुलेट करना है एंड इसकी रेजिडुअल वैल्यू कुछ नहीं है 15 इयर्स 20 के लिए 0.4 टोटल लाइफ की सॉरी 0.3 हो जाएगा एंड 20% ऑफ द 20 कैन बी आइडेंटिफाई इंडिविजुअल एसेट। इस वजह से आपके पास में ए सॉरी 0.4 ऑपरेशंस को हम क्या कैलकुलेशन सीजीयू कर लेते हैं सही से। 15 कैलकुलेशंस करते हैं यहाँ पे। 1/4/2022 पे आपके पास में जो वैल्यू था 4.5 लाख का वैल्यू था, ये वैल्यू हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। अब इसको डेप्रिशिएट करके लेके चलते हैं 31 मार्च 2024 तक यूजिंग द यूजफुल लाइफ 15 इयर्स हैविंग नो रेजिडुअल वैल्यू, तो 0.3 हो जाएगा 0.3 एंड 0.3 फॉर 2 इयर्स आपके पास में कैरिंग अमाउंट एज ऑन 1/4/2024 वुड बी 3.9 लाख। अब ये क्योंकि सीजीयू है, कैश जनरेटिंग यूनिट है एंड वी डोंट हैव एन इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट कैश फ्लोज, तो इसलिए हम क्या करेंगे इन सब दोनों को सम कर देंगे। इनकेस इंडिविजुअल कैश फ्लोज होता तो हम गुडविल उतने अमाउंट से हर एसेट्स पे अलग अलग से ऐड करके चलते। अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, पहले सम कर दिया गुडविल को, गुडविल सम करने के बाद हमारे पास टोटल वैल्यू ये आ गया। अब देखो टोटल सीजीयू में क्या क्या इंक्लूडेड है, पहली बात तो एसेट्स इंक्लूडेड प्लस गुडविल इंक्लूडेड है। हमने क्या कर लिया, एसेट्स एंड गुडविल का कैरिंग अमाउंट को हम कंपेयर कर रहे हैं ऐसे रिकॉर्डेबल अमाउंट का एंड दैट कंटेन्स एसेट्स एज वेल एज गुडविल, क्योंकि ये भी क्या है इंडिपेंडेंट कैश फ्लोज अवेलेबल नहीं, इस वजह से टोटल को ही हम लेके चल रहे हैं यहाँ पे भी, ठीक है। 3.02 इज द वैल्यू इन यूज। आपके पास नेट सेलिंग प्राइस यहाँ पे गिवन नहीं है तो हम कंप्यूट करते हैं नेट सेलिंग प्राइस और वैल्यू इन यूज विच हाई है। अब यहाँ पे क्योंकि ये गिवन नहीं है तो वैल्यू इन यूज गिवन है, इसी को ले लेंगे हम 3.02, आप यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करोगे तो 1.38 लाख वुड बी योर आंसर, ठीक है। दिस इज योर इम्पेयरमेंट लॉस। इम्पेयरमेंट लॉस इतना है, इसमें से हम अलोकेट कितना करेंगे 0.5 वुड बी अलोकेटेड टू गुडविल एंड 0.88 बाकी एसेट्स के लिए अलोकेट किया जाएगा, तो ये आंसर इसका बनता है, ठीक है। अब देख लेते हैं ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या अवेलेबल था क्वेश्चन नंबर 2 के लिए।
ओके। एफआर के बच्चे सोच रहे होंगे कि हम ग्रुप टू डायरेक्टली दे रहे हैं, तो सॉरी ग्रुप टू के बच्चे सोच रहे होंगे हम एफआर पढ़े नहीं है तो कैसे करके हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो एफआर पढ़े नहीं हो, ठीक है, परेशानी तो है, बट ये आप क्या कर सकते हो कि छोटे छोटे कंसेप्ट यूट्यूब वीडियो पे देख सकते हो, प्रैक्टिस करते जाओ, जैसे जैसे कौन कौन से इंडेक्स हिट हो रहे, जैसे इंडेक्स 115 आपने देख लिया, इंडेक्स 36 यहाँ पे, इंडेक्स 103 है, इंडेक्स 110, कौन कौन से इंडेक्स हिट हो रहे हैं, आप उन इंडेक्स की कंसेप्ट वीडियो आप यूट्यूब पे भी काफी पढ़े हुए हैं, आप वहां से भी देख सकते हो। इसके अलावा आप एक सब्जेक्ट कैप्सूल्स कैप्सूल्स आईसीआई ने इंट्रोड्यूस कर रखा है अपने आईसीआई बोस पे, आप चेक करो, वहां से भी आप एक बार पढ़ सकते हो जाके कंसेप्ट लेने के लिए, बाकी पढ़ना तो पड़ेगा, देख लो आप। अब इसे प्रैक्टिस हम कर ही रहे हैं, इससे भी आपके क्वेश्चंस काफी सॉल्व हो जाएंगे। तो दिस इज द आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का डी, बाकी तो आंसर नहीं। ओके, यहाँ पे भी गिवन है एंड द सेम शुड बी अलोकेटेड टू गुडविल एंड दिस प्रोपोर्शनेटली नहीं करेंगे हम, फर्स्ट टू गुडविल एंड देन टू अदर एसेट्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का डी इज द आंसर। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द रिक्वेस्ट ऑफ मिस्टर बेमाम Mr. Bowman, sorry, to inspect the contract of the services entered with the company with Mr. Gates, MD identify the incorrect statement out of the following. Such contract of the service shall be kept at register office of the company, ठीक है। contract service हम यहीं पे रखेंगे। members में inspect the contract of office only after payment of prescribed, नहीं भाई free of cost available होता है। member can inspect the contract service with MD और WTD only if authorized by the article, नहीं, ये गलत है। तो स्टेटमेंट हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स पता करने थे, इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स पता करने थे, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स यहाँ पे कौन से 2 and 3 आर द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स, ठीक है। सो दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। एमसीक्यू नंबर 3 का आंसर ये क्वेश्चन, दैट इज डी। The register of the directors and KMP shall be kept open for the inspections during business hour. Members shall have the right to extract therefrom and the copies thereof on request, and the same will be provided to them within 30 days free of cost, ठीक है। ये था, यहाँ पे कहीं पे पैसे वैसे नहीं लगते हैं। कंसिडरिंग द फैक्ट इन इश्यू नंबर 4 इज द अपॉइंटमेंट ऑफ द हीरो एज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी वैलिड। देखो अपॉइंटमेंट ऑफ द हीरो कैसे हुआ था, हमने के स्टडी में पढ़ा था कि सम वन गाना वाज द नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड ही डाइड, एक्सीडेंट में वो मर चुके थे, इस वजह से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कैजुअल वैकेंसी को फिल किया था बाय अपॉइंटिंग हीरो। तो दिस अपॉइंटमेंट बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज वैलिड। अब इनको क्या करना होगा, बट यहाँ पे इन्होंने डाल दिया, इनका टेन्यूर अनकंडीशनली वुड बी द टर्म ऑफ 3 years। दिस इज नॉट करेक्ट, ये करेक्ट नहीं है। बोर्ड के पास ये पावर नहीं है कि उनका टेन्यूर ये सिलेक्ट करे। दिस विल बी द टर्म दैट इज लेफ्ट अनएक्सपायर्ड फॉर द पर्सन ऑन हुम प्लेस द न्यू डायरेक्टर इज बीइंग अपॉइंटेड। मतलब गाना की कितने टर्म बचे हुए थे, सपोज 5 साल थे, उन्होंने 2 साल अभी तक सर्व किया था, 3 साल अभी बचे हुए थे, तो 3 साल की टर्म के लिए ही ये मिस्टर हीरो वुड बी अपॉइंटेड। येट वंस द अपॉइंटमेंट इज डन बाय द कैजुअल वैकेंसी की जब फिल हो जाती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा, तो उसके बाद इनकी अप्रूवल करनी पड़ती है बोर्ड जनरल मीटिंग पे बाय द शेयर होल्डर, ठीक है। तो इश्यू नंबर 4 पे अपॉइंटमेंट तो वैलिड है, अपॉइंटमेंट ऑफ द डायरेक्टर इज नॉट वैलिड, ये रॉन्ग है। पोर्शन इज वैलिड शुड बी अप्रूव्ड बाय द जनरल मीटिंग, ये सही लग रहा है, ठीक है। इज वैलिड अप्रूवल इज नॉट रिक्वायर्ड, ये गलत है, एंड इज नॉट वैलिड तो गलत है। तो पॉइंट नंबर बी इज द आंसर, बी इज द राइट आंसर। अपॉइंटमेंट इज करेक्ट बट अप्रूवल अभी भी रिक्वायरमेंट है इन जनरल मीटिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। इज सहाना नॉट रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद एनी प्रोविजंस अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 कंसीडरिंग हर इंडिविजुअल टैक्स रिटर्न्स आर नॉट सब्जेक्ट टू ऑडिट अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। देखो सहाना के केस में किस केस से रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है, ये है आपके पास में एक प्रॉपर्टी वो जो खरीद रही है फ्रॉम रेनबो, दैट इज एनआरआई से 48.5 लाख रुपीस की प्रॉपर्टी वो खरीद रही है। दिस इज द वन केस। नेक्स्ट केस इज द रिनोवेशंस, एंड यहाँ पे जो सीए हैं मुरारी जी क्या कह रहे हैं कि इनको कोई भी डिडक्शंस करने की जरूरत नहीं है, ये गलत है मुरारी जी, आप गलत है यहाँ पे। एक्चुअली में क्या है कि जो रिनोवेशन से कर रही है 60 लाख के, दिस इज द कंट्रैक्ट वर्क 194C पे टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत बन जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इज विद रिस्पेक्ट टू 48.5 लाख, देखो इस पे दो सेक्शन हिट करती है, 194IA एंड नेक्स्ट इज 195। 194IA जो सेक्शन नंबर है, इन पे क्या होता है आपके पास में जो भी प्रॉपर्टी परचेज की जाती है, मूवेबल प्रॉपर्टी, नई मूवेबल प्रॉपर्टी जो परचेज किए जाते हैं, उस नई मूवेबल प्रॉपर्टी में इन केस द वैल्यू इज एक्सीडिंग 50 लाख रुपीज, तो हम क्या करेंगे 1% के रेट पे टीडीएस डिडक्ट करने का काम करेंगे 194IA पे। बट यहाँ पे क्योंकि 50 लाख से कम है, तो इस वजह से यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट करने की टीडीएस एप्लीकेबिलिटी 194IA की नहीं बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे एप्लीकेबिलिटी बन जाएगी सेक्शन नंबर 195 की, जो क्योंकि ये एनआरआई है, तो यहाँ पे हमें टीडीएस डिडक्ट करने पड़ेंगे 195 सेक्शन नंबर पे एंड कॉन्ट्रैक्ट के लिए 194C पे।
तो लेट्स सी द ऑप्शन। क्वेश्चन 5A में 194 आए नहीं, TDS is required to be deducted on 195, ठीक है। Also TDS is required to be deducted on the contract if the contract value is over 6 lakh, ठीक है, ये ऑप्शन सही लग रहा है। 8 बाकी ऑप्शन ही पढ़ लेते हैं। इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड अंडर सेक्शन 195, ये गलत है। रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194 IA एंड नो TDS इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड, तो ये गलत है। तो हमारे पास जो आंसर है दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 का B इज द आंसर, ठीक है। चलो आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 6 में चले। क्वेश्चन नंबर 6 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, ये हो गया हमारा एमसीक्यू कंप्लीट। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पे चलते हैं। सहाना इज इंटीग्रेटेड बाय द कांसेप्ट ऑफ द इम्पेयरमेंट एंड वांट्स टू अंडरस्टैंड इफ एन एसेट वंस इम्पेयर्ड कैन बी रिवर्स्ड। अच्छा, एक बार इम्पेयर हो चुका है तो क्या वो एसेट की रिवर्सल हो सकती है, नहीं हो सकती, ये बताया, ये पूछा गया है। तो ये तो मैंने आपको बोला कि केस स्टडी बिना पढ़े भी आप कंसेप्ट का क्वेश्चन नहीं है, कंसेप्चुअली क्वेश्चन है, हम लिख सकते हैं आराम से। चलिए पहले तो इम्पेयरमेंट समझते हैं। इम्पेयरमेंट होता क्या, इम्पेयरमेंट होता क्या ये समझ लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल मैंने ले रखा है यहाँ पे 100 लाख की एक प्लांट एंड मशीनरी परचेज किए गए 31 मार्च 2020 पे, ठीक है, जिनकी रेजिडुअल वैल्यू कुछ भी नहीं है, नो रेजिडुअल वैल्यू, एंड एसएलएम मेथड पे हम करने वाले हैं उनकी डेप्रिसिएशन को क्लेम। तो एसएलएम एंड यूजफुल लाइफ इनका क्या है 10 ईयर्स है। तो इन दैट केस हमारे पास जो डेप्रिसिएशन आएगा फॉर ईच ईयर दैट विल बी 10, ठीक है। अब 10 की डेप्रिसिएशन हम इस पे लगाते हुए आ रहे थे 31 मार्च 2024 पे। वी गेट द इंटरनल इंडिकेशंस, हमारे पास मिले कि भैया आपको करने हैं इनको एम्पियर, एम्पियर करने के लिए इंटरनल इंडिकेटर्स एंड एक्सटर्नल इंडिकेटर्स, दो इंडिकेटर्स होते हैं। हमें इंटरनल इंडिकेटर से पता चला कि हमें इसको करना है एम्पियर। तो रिकवरेबल अमाउंट हम कैलकुलेट करें, रिकवरेबल अमाउंट हमने कैलकुलेट करके पता किया कि रिकवरेबल अमाउंट इज 30 लाख है रिकवरेबल अमाउंट। तो हमारे पास कैरिंग अमाउंट कितना है 60 है, बट द रिकवरेबल अमाउंट इज 30। हियर कैरिंग अमाउंट बिकम्स ग्रेटर देन दैट ऑफ द रिकवरेबल अमाउंट, ठीक है। इनकेस आप सेल करने जाते हो तो रिकवरेबल अमाउंट विल बी वेरी लेस। तो इन दैट सिनेरियो हम क्या करते हैं, इसको इम्पेयरमेंट लॉस बुक कर देते हैं एज पर इंड AS 36। तो इम्पेयरमेंट लॉस कितना होगा 60 - 30 इज इक्वल्स टू 30। दिस इज द इम्पेयरमेंट लॉस दैट हैज टू बी बुक्ड। अब रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट कितना बचेगा, ये रिकवरेबल अमाउंट वुड बी द रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट। तो ये बेसिकली कंसेप्ट है आपके पास में इम्पेयरमेंट लॉस का। यहाँ तक का कंसेप्ट ये है कि इम्पेयरमेंट लॉस आप कैसे बुक करोगे, किस सिनेरियो पे बुक करोगे। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इंटरनल इंडिकेटर्स एंड एक्सटर्नल इंडिकेटर्स, वो अभी हम देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट सब पार्ट पे है इसका क्वेश्चन, उसी सब पार्ट पे हम देख लेंगे इंटरनल एंड एक्सटर्नल इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक की बातें तो आपको क्लियर हो चुकी है अभी तक कि इम्पेयरमेंट लॉस होता क्या है, इम्पेयरमेंट लॉस को हम बुक कैसे करते हैं, कहाँ पे करते हैं। अब देखो रिवाइज कैरिंग अमाउंट हमारे पास आ गया 30। अब यहाँ पे ऑलरेडी 4 इयर्स लैप्स हो चुके हैं, वी हैव दी 6 year lapsed, 6 year left। तो इन दैट सिनेरियो आफ्टर ईयर व्हाट वुड बी द डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन क्या होगा 30 लाख पे 30 लाख डिवाइड बाय 6 करके हम डेप्रिसिएशन कंप्यूट करेंगे, दैट वुड बी 5। तो 30 - 6 25 वुड बी द रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट फॉर 31 मार्च 2025। अब देखो 31 मार्च 2025 में अगेन वी इवेल्युएटेड द रिकवरेबल अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट हमें तभी पता चला कि 60 है। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि 60 रिकवरेबल अमाउंट तभी पता चला हमें, बट वी हैड आवर कैरिंग अमाउंट इज 25। तो इस सिनेरियो पे क्या हो गया, कैरिंग अमाउंट बिकम्स लेस देन दैट ऑफ द रिकवरेबल अमाउंट। अब हमें क्या करना होगा, इम्पेयरमेंट लॉस जो हमने बुक किया था उसको रिवर्स करना होगा, क्योंकि जो भी इंडिकेटर्स थे दैट हैज सेटल्ड डाउन। अब हमारी सिनेरियो है सही सिनेरियो चल रही है एंड हमारी रिकवरेबल अमाउंट इज गोइंग हायर। तो इन दैट केस इंड AS 36 सेज दैट कि आपको क्या करना होगा, इम्पेयरमेंट लॉस को रिवर्स करना होगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि इम्पेयरमेंट लॉस क्या सारा रिवर्स हो जाएगा, 30 का 30 रिवर्स करना होगा, या हमें डेप्रिसिएशन इनके 30 का 30 रिवर्स कर देते हैं। तो क्या सिनेरियो आएगा कि जो डेप्रिसिएशन इस एक साल में लगना चाहिए वो डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा इस पे, और हम तो रिकवरेबल अमाउंट पे ही बुक करेंगे अपनी न्यू एसेट्स। तो इन दैट सिनेरियो व्हाट दिस सेज इन AS 36 पे कंसेप्ट है, वो कहता है कि जितनी आपकी एसेट्स जनरली इनकेस हम भूल जाते हैं कि कोई इम्पेयरमेंट लॉस हुआ था और जनरली हम डेप्रिसिएशन क्लेम करने चलते हैं, तो अभी का डेट में ऑन 31 मार्च 25 व्हाट वुड बी दी कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट कितना बनेगा, यहाँ पे 5 साल का डेप्रिसिएशन है, 100 का वैल्यू है, 10 यूजफुल लाइफ था, 50 वुड बी द कैरिंग अमाउंट। अब जितना 50 कैरिंग अमाउंट है ना, तो हमें अलाउड रिवर्सल्स कितना है, दी एग्जिस्टिंग कैरिंग अमाउंट एंड दी कैरिंग अमाउंट दैट वुड हैपन इन केस इम्पेयरमेंट लॉस नहीं होता। तो कितना टोटल रिवर्सल हमें अलाउड होगा 25 की रिवर्सल ही हम कर पाएंगे, 25 से ऊपर हमें रिवर्सल यहाँ पे अलाउड नहीं किया जाएगा, मतलब 30 का 30 फुल रिवर्सल अलाउड नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो 25 की रिवर्सल्स करेंगे, बाकी वाकई में अप्रिसिएशन कितना है देखो, तो आप 60 - 25 35 इज द टोटल अप्रिसिएशन। तो यहाँ बच गया डिफरेंस इन दो के बीच में 10 का डिफरेंस। 10 को क्या होगा, रिवैल्यूएशन रिजर्व पे बुक किया जाएगा। देखो अल्टीमेट इम्पैक्ट क्या पड़ा, अल्टीमेट इम्पैक्ट आप देखोगे तो 100 आफ्टर 5 years ऑफ लाइफ ये हो गया था 50, ठीक है।
आफ्टर 5 years ऑफ लाइफ बीतने के बाद में ये 50 की कैरिंग अमाउंट में था। अब हमने देखा रिकवरेबल अमाउंट इज 60, तो हम बुक कितने में करेंगे, इसको 60 पे दिखाएंगे। 10 का रिवैल्यूएशन रिजर्व बुक करेंगे। अल्टीमेट इम्पैक्ट हमारा पर यही रहा है कि हम 60 पे दिखा रहे हैं एंड 10 वुड बी द रिवैल्यूएशन रिजर्व, 60 वुड बी द न्यू रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट एंड अब 60 पे डेप्रिसिएशन हम क्लेम करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट इम्पेयरमेंट लॉस। इम्पेयरमेंट लॉस के लिए हमें लिखना ऐसे ही पॉइंट नंबर 1 के लिए, ठीक है। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। पॉइंट नंबर 2 पे था रिगार्डिंग टू कि आपके पास में इंडिकेटर्स कौन कौन से, इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं। देखो इंडिकेटर्स दो हैं यहाँ पे, एक तो है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, एक है इंटरनल सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। इंटरनल पहले देख लेते हैं। हमारे पास सिग्निफिकेंट चेंज हमें पता चला जिसके पास में फेवरेबल इफेक्ट है ड्यूरिंग द पीरियड that are expected to take place in the future to the extent and the asset is used expected to be used, मतलब एसेट की यूज फेवरेबल इफेक्ट हमारे को दिख रहा है एंटिटी में फ्यूचर में होने वाले, जिसके वजह से एसेट का ज्यादा ही यूज होने वाला है, वेयर एंड टियर बढ़ने वाला है, ठीक है। एविडेंस इज अवेलेबल फ्रॉम द इंटरनल रिपोर्टिंग दैट इंडिकेट्स इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ द एसेट विल बी बेटर दैन द एक्सपेक्टेड, मतलब जितनी एक्सपेक्ट कर रखा था, हमने पहले से एक्सपेक्ट कर रखा था कि यूजफुल लाइफ 5 साल की होने वाली है, बट अभी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस हम इनकी देख रहे हैं और हमें लग रहा है नहीं इसका यूजफुल लाइफ 7 years होने वाला है। तो दिस इज द सिनारियो। इस वजह से इंटरनली हम इंटरनल सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन से आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि इम्पेयरमेंट लॉस होने वाली है। दीज आर द इंडिकेटर्स। सिमिलरली एक्सटर्नल सोर्स ऑफ द इन्फॉर्मेशन में एक तो मार्केट इंटरेस्ट रेट बन जाता है। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग टू गवर्नमेंट की कोई कोई लीगलाइजेशन आ गया कि भैया आप ये एसेट आप यूज ही नहीं कर पाओगे, या फिर ये एसेट्स आप लो वैल्यू पे यूज कर पाओगे, या सिंपली ये एसेट यूज नहीं कर पाओगे, इट मींस एसेट की वैल्यूएशन गिर गया, तो रिकवरेबल अमाउंट वुड बी लेस फॉर दैट एसेट्स, ठीक है। एसेट वैल्यू इंक्रीज हो गई है सिग्निफिकेंटली ड्यूरिंग द पीरियड, इंडिकेशन से कहा है एक्सटर्नली कि भैया एसेट की वैल्यू ओवर वैल्यूड हो चुकी है, तो दैट इज ऑल्सो केस जहां पे हमारे पास में इम्पेयरमेंट लॉस कंप्यूटेशंस करने पड़ते हैं। सो दिस आर द एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन, इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है, आप इसको एक बार पढ़ लो, दैट विल बी फाइन। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे ये पूछा गया है कि जीएसटी रिटर्न फाइल करते समय हमने कोई इनपुट छोड़ दिया, सपोज व्हाइल क्लेमिंग जीएसटी आईटीसी सम इनवॉइसेस हैव बीन मिस्ड, अब कब तक हम इसको फाइल कर सकते हैं, दैट हैव बीन आस्क्ड। देखो क्या होता है इसके लिए, एनुअल रिटर्न होता है और 31 दिसंबर ऑफ नेक्स्ट ईयर फॉलोइंग ईयर, सपोज प्रीवियस ईयर हमारे पास में था 22 to 23, तो इन दैट सिनेरियो 31 दिसंबर 23 और द डेट ऑफ एनुअल रिटर्न, जब आप एनुअल रिटर्न फाइल, सॉरी 31 एनुअल रिटर्न की फाइलिंग ही 31 दिसंबर होता है, कोई कंफ्यूजन नहीं। यहाँ पे देखो पॉइंट इज, यहाँ पे हमारे पास क्या हो 30 नवंबर और द एनुअल रिटर्न आप जब फाइल कर दे तो विच एवर दिया, दिस इज बेसिकली द डेट जब तक आपको ये फाइल करनी है। क्वेश्चन नंबर 7 पे जो पूछा गया आईटीसी इनवॉइसेस यदि कोई मिस हो जाता है तो कब तक उसको फाइल कर सकते हैं हम, 30th day of नवंबर और फर्निशिंग द एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्ली, एनुअल रिटर्न फर्निश करने का डेट होता है 31 दिसंबर, ठीक है। Thus, in accordance with the provisions, the view taken by Sahana is not correct. बस क्वेश्चन नंबर 7 पे इतना ही लिखना है, 2 मार्क्स पे क्वेश्चन होगा ये, हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। Question number 8 is the executive and the non-executive directors have different roles and responsibilities. The responsibility of independent director with reference to the financial reporting and the approval as a part of an audit committee has a request a special mention. Explain with example. देखो दो डिफरेंट किस्म के डायरेक्टर होते हैं, एक तो हो गया आपके पास में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एक हो गया नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ठीक है। एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं आपके पास में। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो होते हैं दैट हैव जो इन्वॉल्व होते हैं इन डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस ऑफ अ कंपनी, ठीक है। वो डे टू डे एक्टिविटीज में आपके पास में इन्वॉल्व दिखेंगे, जैसे कि मैनेजिंग डायरेक्टर हो गए, होल टाइम डायरेक्टर हो गए, ठीक है। बट द नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आर सम पर्सन्स हैविंग एक्सपर्ट इन सम नॉलेज, ठीक है। उनको कभी कभी बुलाया जाता है जब उनकी नॉलेज की एक्सपर्टीज की रिक्वायरमेंट होती है, दे आर द नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ठीक है। मे बी वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ पार्ट टाइम डायरेक्टर्स ओवर देयर। तो ये बेसिकली डिफरेंस है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के बीच में। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है एक कंपेरिजन टू नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अब यहाँ पे इन्होंने पूछा ऑडिट कमेटी की फंक्शंस क्या क्या होंगे। देखो ऑडिट कमेटी अल्टीमेटली करेगी क्या, ऑडिटर्स के अपॉइंटमेंट से लेकर ऑडिटर्स के इंडिपेंडेंस के चेकिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर सही से हुए हैं, इंटरनल कंट्रोल जो है विद इन द कंपनी दैट इज ऑल राइट, ये सब एक्चुअली देखने का काम करेगी। चलिए एक बार पढ़ लेते हैं इंस्टीट्यूट की सॉल्यूशन से। The board of director may comprise both the executive and non-executive director. Executive director are responsible for managing different business operations. एक WTD managing director covered within this category and non-executive director through board meetings in his discussions relating to the formulations of policies from the efficient management of the business. ठीक है। प्रोफेशनल डायरेक्टर एंड नॉमिनी डायरेक्टर जो है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं।
देखो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को कब बुलाया गया, पार्टिसिपेट किया था बोर्ड मीटिंग में, सिर्फ पार्टिसिपेट किया जाता है डिस्कशंस के लिए, दैट्स इट। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आर हेल्ड लायबल ओनली इफ द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इज रिस्पांसिबल फॉर व्हाटएवर टास्क इज बीइंग गोइंग ऑन द कंपनी, बट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को लायबल तभी माना जाएगा जब वो खुद ही कंसेंट करेंगे कि भैया कुछ रॉन्गफुल एक्ट्स हुए एंड दैट इज अप टू माय नॉलेज। ठीक है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रिस्पांसिबिलिटी with reference to the financial reporting and approval of the audit committee, ये सेक्शन 177 ऑडिट कमेटी के बारे में गिवन है, उनकी रिस्पांसिबिलिटी ये बताया गया है कि रिकमेंडेशन करना है फॉर द अपॉइंटमेंट, रेम्यूनरेशंस एंड द टर्म्स ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर्स। ऑडिटर से रिलेटेड देखो, एक पॉइंट है कि अपॉइंटमेंट, नेक्स्ट पॉइंट है मॉनिटर करना उनका इंडिपेंडेंस परफॉर्मेंस, फिर एग्जामिनेशन करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑडिटर रिपोर्ट्स देयरऑन, फिर इवैल्यूएट करना है इंटरनल कंट्रोल। ये चार बातें तो मैंने आपको बता ही दिया था। नेक्स्ट उसके अलावा वैल्यूएशंस ऑफ द अंडरटेकिंग एंड अप्रूवल ऑफ द सब्सिक्वेंट मॉडिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस विद इन द रिलेटेड पार्टीज एंड स्क्रूटनी ऑफ द इंटर कॉर्पोरेट लोन्स एंड एडवांसेस एंड मॉनिटरिंग एंड एंड द फंड्स। देखो याद कैसे करना है, याद ही करना होगा आपको, वैसे ज्यादा है नहीं। देखो ऑडिट कमेटी है, अल्टीमेटली ऑडिट के रिलेटेड ही काम करेगी, तो ऑडिटर्स की अपॉइंटमेंट, उनकी रेम्यूनरेशंस फिक्स करना, ऑडिटर्स की इंडिपेंडेंस चेक करना, ऑडिटर रिपोर्ट्स एंड द फाइनेंशियल रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की चेकिंग करना, ऑथेंटिकेट करना बोल सकते हो आप। एंड नेक्स्ट आपके पास में नेक्स्ट इज रिगार्डिंग टू इवैल्यूएशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। इसके अलावा अंडरटेकिंग की वैल्यूएशंस ये यहाँ पे बताया गया है, रिलेटेड पार्टीज ट्रांजैक्शंस जो हो रहे हैं उनकी अप्रूवल भी, उनकी अप्रूवल्स, एंड नेक्स्ट इंटर कॉर्पोरेट लोन्स एंड द इन्वेस्टमेंट कुछ है उसकी स्क्रूटनी करने का काम करती है। तो दिस इज बेसिकली आपके पास में जो क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बताया गया। अच्छा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज अ पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी एंड पोजेस रिलेवेंट एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस इन वन मोर फील्ड। ठीक है, कोई नहीं, मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स बीइंग एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, okay, in the audit committee leads to promote the principles of the corporate governance by enabling the disclosure, transparency and accountability to the company। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रोल क्या है ऑडिट कमेटी में, वो पूछा गया, और रोल इनका ये है कि भैया ये प्रमोट करेगी प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ऑल द अफोरसेड ट्रांजैक्शंस हैव अ क्रिटिकल इफेक्ट विद रेफरेंस टू द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस एंड अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अकॉर्डिंगली इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स इन द कैपेसिटी इज द मेंबर ऑफ ऑडिट कमेटी प्ले अ की रोल। तो हमें बस ऑडिट कमेटी की रोल बता देने हैं, ऑडिट कमेटी की रोल बता के उनको ये बता देना है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नेंस को फॉलो करने में, प्रमोट करने में हेल्प करती है। इस वजह से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रोल इंपॉर्टेंट है फॉर द केस ऑफ द ऑडिट कमेटी। तो ये बेसिकली आपके पास में था केस स्टडी नंबर 10। ठीक है, इनके सब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, दैट इज ओनली वे कि हम मोटिवेट होते हैं फॉर प्रिपेयरिंग दिस लाइक दिस वीडियोस। एंड केस स्टडी नंबर 1 से लेके 9 तक ऑलरेडी अपलोडेड है इस यूट्यूब चैनल पे, आप उसको भी देख लेना, प्रैक्टिस करते जाओ। अभी से आप प्रैक्टिस करोगे तो मैं 24 एग्जामिनेशन तक आपकी IBS प्रिपेयर हो जाएंगे। दिस इज नॉट लाइक अदर इलेक्टिव कि आप लास्ट में रखोगे 10-15 दिन में कवर कर लोगे, बिकॉज सिलेबस यहाँ पे फिक्स नहीं है, सिलेबस इज वेरी वाइड। सो बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।